بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر اور آپ سب کو زرناب ورچوئل لرننگ میں C++ کی آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے جس میں ہم سائز آف آپریٹر اور ڈیٹا ٹائپ کے کون کون سے میکروز ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم ایک پروگرام کی مدد سے سائز آف آپریٹر اور ڈیٹا ٹائپ کے مختلف میکروز کو پریکٹیکلی پروگرام بنا کر سیکھیں گے۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج کی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اپنی پچھلی کلاس کو ریکیپ کرتے ہیں جس میں ہم نے ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں پڑھا تھا۔ اگر آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی ڈاٹ میں اس کا لنک آپ کو ملے گا، وہاں کلک کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ C++ کی ڈیٹا ٹائپس کو ہم براڈلی تین طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں، جسے ہم بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ، یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ اور ڈیرائیوڈ ڈیٹا ٹائپ کا نام دیتے ہیں۔ بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ کو پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ یا فنڈامنٹل ڈیٹا ٹائپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے جو آلریڈی پروگرامنگ لینگویج کا پارٹ ہوتی ہے۔ یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپس کو پروگرامر یا یوزر خود ڈیفائن کرتا ہے، اور جو ڈیرائیوڈ ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں اسے فنڈامنٹل یا بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ سے بنایا جاتا ہے۔ بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس میں ہمارے پاس انٹیجر ڈیٹا ٹائپ، کیریکٹر ڈیٹا ٹائپ، فلوٹ اور ڈبل ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ماڈیفائرز کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں جس میں شارٹ، لانگ، سائنڈ اور انسائنڈ ماڈیفائرز ہوتے ہیں۔ یہ ماڈیفائرز کسی بھی ڈیٹا ٹائپ میں سٹور ہونے والی ویلیوز کی لینتھ کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ میں ہمارے پاس اسٹرکچر، یونین، کلاسز اور انیومریشنز ہوتی ہیں، اور ڈیرائیوڈ ڈیٹا ٹائپ میں ہمارے پاس ایریز، فنکشنز اور پوائنٹرز ہوتے ہیں۔ آج کی کلاس کا ٹاپک ہے سائز آف آپریٹر اور ڈیٹا ٹائپ میکروز۔ سائز آف ایک کی ورڈ ہے اور اسے ہم یونری آپریٹر کہتے ہیں۔ سائز آف کمپائل ٹائم پہ کسی ڈیٹا ٹائپ، کانسٹنٹ، ایکسپریشن یا ویریبل نے میموری میں کتنا سائز آکوپائی کیا ہوا ہے یہ آپ کو ریٹرن کرتا ہے۔ یہ دیکھیے، سائز آف ایک کی ورڈ ہے اور ہم اس کو یونری آپریٹر کہتے ہیں۔ سائز آف آپریٹر ڈیٹا ٹائپ، کانسٹنٹ، ایکسپریشن یا ویریبل کا جو میموری سائز ہوگا وہ آپ کو ریٹرن کرے گا، اور کس ٹائم پہ؟ کمپائلیشن ٹائم پہ۔ اس کے علاوہ ہم سائز آف آپریٹر کی مدد سے جو یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپس ہیں جس میں کلاسز ہیں، اسٹرکچرز ہیں، یونینز ہیں، ان کے میموری سائز کو بھی ریٹرن کر سکتے ہیں یا گیٹ کر سکتے ہیں۔ سائز آف آپریٹر کی مدد سے ہم ایرے کا ٹوٹل میموری سائز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور ایرے کے اندر جو نمبر آف ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ سائز آف کی مدد سے ہم ڈائنامکلی میموری اسائن کر سکتے ہیں یوزنگ malloc فنکشن۔ سائز آف آپریٹر کا سنٹیکس کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم سائز آف لکھیں گے، سائز اور آف کے درمیان میں اسپیس نہیں ہوگی، اس کے بعد پیرنتھسز میں ہم ڈیٹا ٹائپ مینشن کریں گے۔ پیرنتھسز میں ہم ڈیٹا ٹائپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹا ٹائپ فنڈامنٹل یا بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ ہو سکتی ہے، یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ بھی ہو سکتی ہے، اور ڈیرائیوڈ ڈیٹا ٹائپ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس پیرنتھسز میں کوئی کانسٹنٹ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی ایکسپریشن بھی لکھ سکتے ہیں، اور کوئی ویریبل بھی لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک تھا ڈیٹا ٹائپ میکروز ان C++۔ ہر ڈیٹا ٹائپ کی اپنی کچھ منیمم اور کچھ میکسیمم ویلیوز ہوتی ہیں جسے ہم رینج آف ویلیوز کا نام دیتے ہیں۔ ان رینج آف ویلیوز کو یاد رکھنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ C++ ہمیں کچھ ایسے میکروز مہیا کرتی ہے جو ان منیمم اور میکسیمم ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی منیمم ویلیو کو ریپرزینٹ کرنے کا میکرو ہے int_min۔ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی میکسیمم ویلیو کو ریپرزینٹ کرنے کا میکرو ہے int_max۔ فلوٹ کی منیمم ویلیو کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہے flt_min، اور میکسیمم ویلیو کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہے flt_max۔ یہاں ایک چیز آپ نوٹ کیجئے، یہ میکروز کیپٹل الفابیٹس میں لکھے ہوئے ہیں، اور میکرو کا جو نام ہے اس میں سب سے پہلے ڈیٹا ٹائپ لکھی ہوئی ہے، پھر انڈرسکور لگا کر min یا max لکھا ہوگا۔ تو flt_min، flt_max۔ اگر کریکٹر ٹائپ ہوگی
तो char_min, char_max, इस तरह से हमारे पास ये मैक्रोज हैं जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करके ये वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इंटीजर डेटा टाइप का ये एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हमने a रखा है, और यहाँ पर हमने int_max मैक्रो को इस्तेमाल करते हुए इस वैल्यू को हमने a को असाइन कर दिया है या a के अंदर स्टोर कर दिया है। ये हमारे पास डेटा टाइप, उनकी रेंज और उनके मैक्रोज का एक चार्ट है जिसमें हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप की रेंज -128 से लेकर +127 तक है, और इसकी मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज को रिप्रेजेंट करने के मैक्रोज char_min और char_max है। देखिए मैक्रो में सबसे पहले उस डेटा टाइप का एब्रीविएशन या नाम लिखा हुआ है और अंडरस्कोर लगाकर या तो min लिखा हुआ होगा या फिर max लिखा हुआ होगा। अगर शॉर्ट इंटीजर है जिसकी रेंज -32768 से लेकर +32767 तक होती है, और इसको हम मैक्रो की सूरत में shrt short_min shrt short_max से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है जिसमें int_min और int_max है। अनसाइंड इंटीजर, ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नंबर्स पर मुश्तमिल होंगे। देखिए इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये उसकी मैक्सिमम रेंज है। यहाँ पर देखिए उसकी मिनिमम वैल्यू का जो मैक्रो है वो कोई नहीं है, ये 0 वैल्यू होगी, और मैक्सिमम के लिए अनसाइंड इंटीजर मैक्स लिखा हुआ है। इस तरह से लॉन्ग इंटीजर के लिए long_min और long_max होता है। फ्लोट के लिए FLT_min और FLT_max होता है। डबल डेटा टाइप के लिए DBL स्टैंड फॉर डबल, DBL_min और DBL_max होता है। तो डेटा टाइप का मेमोरी साइज और उनकी जो रेंज है वो इस्तेमाल किए जाने वाले कंपाइलर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अब हम एक प्रोग्राम की मदद से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा है। मैंने यही प्रोग्राम dev.c के अंदर बनाया हुआ है। हम उस प्रोग्राम को ओपन करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारे पास dev.c ओपन हो गई है जिसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है #include iostream #include limits.h। यहाँ आप .h लिख सकते हैं या .h के बगैर भी ये हेडर फाइल इस्तेमाल हो सकती है। #include float.h, यहाँ आपको .h लाजमी लिखना होगा। float.h हेडर फाइल में फ्लोट और डबल टाइप के मैक्रोज मौजूद हैं। limits.h में या लिमिट्स में इंटीजर और कैरेक्टर के मैक्रोज मौजूद हैं। तो अगर हम इंटीजर और कैरेक्टर के मैक्रोज को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हमें limits.h हेडर फाइल या लिमिट्स हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा, और अगर हम फ्लोट और डबल के मैक्रोज को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम float.h हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन पैरेंथेसिस ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। यहाँ कुछ मैंने कमेंट्स किया हुआ है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। cout \n ये न्यू लाइन के लिए होता है, हम इसकी बजाय एंडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो cout के बाद हमने इंसर्शन ऑपरेटर लगाया डबल इन्वर्टेड कॉमास में \n कैरेक्टर रेंज फ्रॉम डबल इन्वर्टेड कोट्स क्लोज कर दिए, दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर लगाया char_min, ये हमारे पास उसका मैक्रो है। उसके बाद हमने दोबारा 2 लिखा डबल कोट्स में, फिर हमने लिखा char_max। उसके बाद एंड साइज ऑफ कैरेक्टर टाइप इज साइज ऑफ char बाइट्स। तो इस पूरी लाइन में हमने कैरेक्टर डेटा टाइप की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को प्रिंट करना है, और उसके बाद कैरेक्टर डेटा टाइप मेमोरी में कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी हमने बाइट्स के अंदर आउटपुट करना है। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन को मैंने कमेंट किया हुआ है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट इंटीजर के लिए, अनसाइंड इंटीजर के लिए, लॉन्ग इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए और डबल के लिए जो है वो cout की स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। यहाँ देखिए कंपाइल, एरर 0, वार्निंग 0। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखिए ये प्रोग्राम रन होके आ गया। कैरेक्टर रेंज फ्रॉम -128 to 127 एंड साइज ऑफ कैरेक्टर टाइप इज 1 बाइट।
शॉर्ट इंटीजर की रेंज -3 to 768 से 3 to 767 तक, और इसकी जो साइज ऑफ मेमोरी है वो 2 बाइट है। इंटीजर की ये मिनिमम और ये मैक्सिमम रेंज है, और इसका जो साइज है वो 4 बाइट है। अनसाइंड इंटीजर मैंने आपको बताया था ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसलिए ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये इसकी मैक्सिमम रेंज है, और ये 4 बाइट मेमोरी ले रहे हैं। लॉन्ग डेटा टाइप भी 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेते हैं, फ्लोट डेटा टाइप भी 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेते हैं, और डबल डेटा टाइप 8 बाइट मेमोरी स्पेस लेते हैं। यहाँ उनकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज ऑफ वैल्यूज लिखी हुई आ रही है। अब हम अपने इस प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं। हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को अनसाइंड कैरेक्टर को प्रिंट करके देखते हैं, और साथ में ही हम लॉन्ग डबल डेटा टाइप का तक तो हमने प्रिंट कर लिया था, अब हमारे पास है लॉन्ग डबल। तो हम एक तो लॉन्ग डबल की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज और उसका मेमोरी साइज प्रिंट करेंगे। इसके अलावा हम अनसाइंड कैरेक्टर के मेमोरी साइज को और उसके मैक्सिमम साइज को भी प्रिंट करेंगे। हम कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन किया। ये देखिए अनसाइंड कैरेक्टर, जैसे हमने अनसाइंड इंटीजर में देखा था ये 0 से स्टार्ट होते हैं, इसी तरह से जो अनसाइंड कैरेक्टर होते हैं वो भी 0 से स्टार्ट होते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 255 है। यहाँ कैरेक्टर की रेंज आप देखें 128 से लेकर 127 तक है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 255 हो जाएंगे। साइन को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 128 कंसीडर करें और 127, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 255 बनेंगे। तो जब हम अनसाइंड की बात करते हैं तो जो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होती हैं उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर होते हैं। इस तरह से लॉन्ग डबल में देखें, लॉन्ग डबल की ये रेंज दी हुई है, और लॉन्ग डबल जो है वो 16 बाइट मेमोरी स्पेस डेव C++ में ले रहा है। अगर आप इसको टर्बो सी के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे तो लॉन्ग डबल 10 बाइट मेमोरी स्पेस लेगा, और उसकी इसी तरह से मिनिमम और मैक्सिमम जो रेंज है वो भी चेंज होगी। अब हमने जब मैक्रो पढ़ा तो उसमें मैंने आपसे कहा कि हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करके उस डेटा टाइप के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को हम उस वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल a डिक्लेयर किया, और उसके अंदर इंटीजर अंडरस्कोर मैक्स को इस्तेमाल करते हुए एक मैक्रो के ज़रिए से मैक्सिमम वैल्यू स्टोर की। सी आउट a, जब हम सी आउट ए करेंगे तो ये इंटीजर डेटा टाइप की मैक्सिमम वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। ये देखिए ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं ये हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप की मैक्सिमम वैल्यू है। आप इसको यहाँ पे देखिएगा इंटीजर डेटा टाइप में, ये देखिए ये वाली वैल्यू 2147483647 और ये वाली वैल्यू सेम नज़र आ रही है आपको। अच्छा, अब हम इस प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके और उसके मेमोरी साइज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है, हम उसके साइज को रिप्रेजेंट करते हैं इंट साइज ऑफ, और ब्रैकेट में हमने वेरिएबल का नेम मेंशन कर दिया, सेमीकोलन लगाया। हम बकिया सारे कोड को कमेंट्स कर देते हैं, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज को भी हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। सिंपल एक इंटीजर वेरिएबल बनाया और उसके साइज को हम चेक कर रहे हैं। कंपाइल, कोई एरर नहीं है, रन किया। ये देखिए इंटीजर डेटा टाइप का जो साइज़ है वो 4 बाइट्स बता रहा है। तो इस तरह हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करके साइज ऑफ में हम उस वेरिएबल का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो साइज ऑफ में किसी कांस्टेंट को डिक्लेयर करके उसका साइज भी हम देख सकते हैं। कॉन्स्ट इंटीजर ए असाइन 100, लेट ये एक हमने कांस्टेंट बनाया है ए जिसके अंदर हमने 100 स्टोर किया है, तो हम कांस्टेंट ए का साइज चेक कर रहे हैं। कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। ये देखिए कांस्टेंट जो हमने ए बनाया था इंटीजर टाइप का, उसका मेमोरी साइज भी 4 बाइट्स आ रहा है। इसी तरह से हम कोई एक्सप्रेशन मेंशन करके उसका भी मेमोरी साइज चेक कर सकते हैं। मेमोरी साइज और साइज ऑफ में हम कोई एक एक्सप्रेशन दे देते हैं, लेट
میں ایک ویلیو دے دیتا ہوں 3 اور اس کو ہم پلس کر دیتے ہیں 5 کے ساتھ. اب 3 اور 5 یہ دونوں انٹیجر ہیں تو 3 اور 5 کا آنسر تو 8 ہوگا، لیکن سائز آف اس کے بائٹس کو بتائے گا کہ 3 + 5 ایکسپریشن کے جو نمبر آف بائٹس ریزرو ہو رہے ہیں وہ کتنے ہیں. یہ دیکھیے یہاں بھی 4 آ گیا کیونکہ 3 اور 5 دونوں انٹیجر ٹائپ ہیں. اگر ہم ان کو چینج کر دیتے ہیں 5.5 کر دیں، کمپائل کیا، ایگزیکیوٹ کیا، تو یہ دیکھیے یہاں پہ 8 سائز آ گیا یا 8 بائٹس آ گئی، کیونکہ اب ہمارے پاس ایک انٹیجر ویلیو ہے اور ایک ہمارے پاس فلوٹ ویلیو، تو اس لیے اس کا جو آنسر ہوگا وہ فلوٹ ڈیٹا ٹائپ میں آئے گا. تو یہ تھی ہماری آج کی پریکٹس جس میں ہم نے سائز آف آپریٹر کو اور ڈیٹا ٹائپ کے ڈفرینٹ میکروز کو پریکٹیکلی سیکھا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں جو کانسیپٹ سائز آف آپریٹر اور ڈیٹا ٹائپ کے میکروز کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں اور اپنی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کیجئے. آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت ضروری ہے. میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ.